پاک بھارت جنگ کے دوران ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام کیا. بھارت کی ہر پلاننگ ہمارے پاس بہت پہلے پہنچتی رہی. بھارتی جہاز گرائے جانے کے بعد فیصلہ کیا کہ ثبوت آنے تک اعلان نہیں کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ہم رڈار میں دیکھ چکے تھے کہ ہماری ایئر فورس نے 5 بھارتی طیارے گرا دیے ہیں. بھارتی جہازوں کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. جس بیس پر قیمتی اثاثے تھے وہاں کوئی بھارتی میزائل نہیں گرا. نور خان ایئر بیس پر بھارتی میزائل حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا. سیلاب سے تباہ ہونے والے گھروں کو دوبارہ تعمیر کروائیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا اعلان. کہا وعدہ کرتا ہوں جو نقصان ہوا ہے حکومت ادا کرے گی. سب سے زیادہ نقصان بنیر میں ہوا. کوشش ہے کہ سیلاب کے راستے آنے والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے. مشکل وقت میں مدد کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. علی امین گنڈاپور کا سیلاب سے متاثرہ ضلع بنیر کا دورہ. نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی. شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. صوبائی حکومت کا متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 3 ارب روپے کا اعلان. لواحقین کے لیے 50 کروڑ روپے. وفاقی حکومت کا 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان. خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے سے ہر طرف تباہی. اموات کی تعداد 400 کے قریب پہنچ گئی. درجنوں خاندان اجڑ گئے. 159 مکان متاثر، 62 مکمل تباہ. سوات، باجوڑ، بنیر، بٹگرام، مانسہرہ، شانگلہ اور تور غر شدید متاثر. باجوڑ اور بٹگرام میں قیامت صغریٰ، سیاحتی مقامات بند، ریسکیو سرگرمیاں جاری. سیلاب سے مالم جبہ روڈ کا 400 میٹر حصہ گل میرہ کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہہ گیا. بنیر میں 208 افراد لقمہ اجل بنے. رابطہ سڑکیں اور کئی پل بہہ گئے. پشونئی اور پیر بابا کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے. 70 سے زائد گھر ملبے کا ڈھیر. بازار اجڑ گئے. پیر بابا کا 10 کلومیٹر تک کا علاقہ تباہی کی داستان. جیسے لائیولیہوڈ یا نارمل پہ آئے گا، ہم اگلے انشاءاللہ تعالیٰ مانسون سے پہلے ان تمام اقدامات کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے اس سال 2025 میں نوٹ کیے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے نقصان کو کم کریں. بارش کے موجودہ اسپیل میں مزید شدت متوقع ہے. مزید 3 سلسلے آ رہے ہیں. بنیر اور باجوڑ میں تباہی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی. 2 روز میں 337 لوگ جاں بحق اور 178 لوگ زخمی ہوئے. این ڈی ایم اے حکام کی بریفنگ. اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں شدید بارشیں متوقع. کٹاریاں گوال منڈی میں 15 فٹ تک پانی کی سطح بلند. چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں کہ موسم گرما میں گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے مانسون کا پھیلاؤ زیادہ ہے. مواصلات کے نقصانات کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا. ملک بھر میں سیلاب سے خوفناک تباہی. مجموعی طور پر اموات کی تعداد 650 تک جا پہنچی. 918 افراد زخمی. این ڈی ایم اے کے مطابق سیلابی صورتحال نے خیبر پختونخوا میں مزید 5 افراد کی جان لے لی. 19 زخمی ہوئے. صوبے میں اموات کی تعداد 388 تک جا پہنچی. پنجاب میں 164، گلگت بلتستان اور سندھ میں 28 افراد جاں بحق. بلوچستان میں 20 افراد طوفانی صورتحال کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے. آزاد کشمیر میں 14، اسلام آباد میں 8 افراد جاں بحق ہوئے. وزیراعظم کا امدادی سامان کی ترسیل کے لیے چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ. ریسکیو آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت. بادل پھر برس پڑے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقے زیر آب. گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. نالا لائی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند. اسپل ویز کھول دیے گئے. جڑواں شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ. ایڈوائزری جاری. ممکنہ شدید بارشوں کے پیش نظر ماکلا ہلز کی ٹریل اور سید پور ولیج کے عقب کا ٹریل 19 اگست تک بند. پشاور اور گردنوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا.
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, रुजानी टाउन न्यू कराची कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, रुजानी टाउन न्यू कराची नॉर्थ कराची में तेज बारिश, ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, मौसम ने शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें होंगी। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर KPK के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ मिशन जारी है। बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में दिन रात मसरूफ हैं। मंगोरा में मुतासरा अवाम को आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशया खुरनोश तकसीम। पाक फौज का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक अवामी खदमत का मिशन जारी रखा जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर और सवात में हुआ। महदूद वसाइल में जो कुछ मुमकिन हो सकता था हुकूमत और इदारों ने किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं एक हेलीकॉप्टर सामान ले जाते हुए क्रैश हुआ। पाक फौज पुलों और शाहराहों को बहाल कर रही है, चाहते हैं लोगों के नुकसान को कम से कम किया जाए। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहानी मुमलिकत का पाकिस्तान से जारी रखजहती। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने अपने ताज़ियती पैगाम में इस मुश्किल घड़ी में हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ की फराहमी की पेशकश की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर मुमलिकत के नाम ताज़ियती खत कीमती जानों के ज़िया पर दुख और रंज का इजहार किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याहिया का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। कहा कुवैत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का भी इसहाक डार को टेलीफोन। हालिया सैलाब से होने वाले कीमती जानों पर नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। इसहाक डार का बरतानिया की यकजहती, इमदाद और बहाली की काविशों में मदद की पेशकश का शुक्रिया। एशिया कप और UAE में सह मुल्की सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर ज़बान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत टीम का हिस्सा। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम टीम में शामिल। वसीम जूनियर और साहिबजादा फरहान भी स्क्वाड का हिस्सा। सह मुल्की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में शेड्यूल। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में होगा। बाबर आजम के पास मौका है बिग बैश लीग में परफॉर्म करें। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं T20 में अच्छा खेल रही है, हमने हर खिलाड़ी को मौका देने की कोशिश की है। सेलेक्टर्स और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद कहते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि T20 में बाबर और रिजवान का मुस्तकबिल खत्म हो गया। कोशिश है जो खिलाड़ी दस्तयाब हैं उन्हीं स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस। कुलभूषण की गिरफ्तारी भारत के दहशतगर्दी मुलव्विस होने का बड़ा सबूत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा भारत की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी बेबुनियाद है। भारत ने जारियत में मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने जंगी तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ़द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया। अमेरिका और भारत के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 5 अदवार मुकम्मल हो चुके हैं। छठे दौर के लिए अमेरिकी वफ़द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी दोबारा बढ़ने का खदशा। हिना रब्बानी खर कहती हैं कि मई में भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर मिसाइल हमले किए। भारत ने दावा किया कि दहशतगर्दी के ढांचे को निशाना बनाया गया। 4 रोज़ा खतरनाक कशीदगी के बाद जंगबंदी हुई। भारत सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के जवाब ने भारतीय अस्करी बालादस्ती का तासुर तोड़ दिया। खित्ते में चीन इस्तेहकाम का जरिया है। एटमी रियासतों का टकराव पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। क्रिप्टो सिफारतकारी से वाशिंगटन में पाकिस्तान की पसीराई। सरमायाकारी के मौके बढ़ गए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली से अमेरिका में पाकिस्तान को पसीराई हासिल हुई। भारत पाकिस्तान की पसीराई से नाराज। पाकिस्तान ने क्रिप्टो सिफारतकारी से ट्रम्प बिजनेस हलकों में जगह बनाई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मुआहिदा। खरबों डॉलर्स के मादनी वसाइल टोकनाइजेशन के लिए तैयार।
कराची के सीनियर सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत, लाश सांगड़ में होटल के बाहर गाड़ी से मिली। SSP सांगड़ के मुताबिक खावर को एक गोली सर में लगी। वाक़या खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात जारी। खावर हुसैन की मौत से कबल होटल जाने की फुटेज सामने आ गई। मुलाजमीन के मुताबिक मकतूल सहाफ़ी ने होटल में आकर वॉशरूम इस्तेमाल किया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सूबाई वुज़रा, सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों का अफसोस का इजहार। सहाफ़ती तंजीमों का सिंध हुकूमत से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कोहाट किला के रेगी शनो खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक कोहाट किला के खड़ा गढ़ी मोहम्मद जई से तादान डैम में पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे। यूट्यूबर साद उर्फ डकी लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम साद उर्फ डकी बैरून मुल्क फरार की कोशिश में पकड़ा गया। मुलजिम पर ऑनलाइन जुआ खेलने वाली ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मुकदमे में कहा गया कि मुलजिम ने समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर जुआ खेलने वाली ऐप्स को फरोग दिया। मुलजिम से मोबाइल फोन, मशकूक व्हाट्सएप नंबर और डाटा हासिल कर लिया गया। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस को हादसा, इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। तहकीकाती टीम ने ज्वाइंट सर्टिफिकेट CEO रेलवे को पेश कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेन ओवरशूट होने पर आउट ऑफ कंट्रोल हुई। ड्राइवर ने ट्रेन सेंट हम्प पर चढ़ा दी। ट्रेन ड्राइवर वक्त पर ब्रेक न लगा सका, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा रोनुमा हुआ। हादसे में 1 मुसाफिर जाँ बहक, 19 जख्मी हुए। हट्टा में सजावल रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार। जाँ बहक अफराद में मर्द, औरत और बच्ची शामिल। हज दरखास्तों की वसूली में 1 दिन की तोसी। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक नामजद बैंकों में पीर 18 अगस्त को हज दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। 12 रोज में 1,10,000 से जायद हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। सरकारी हज स्कीम में 7,000 नशिस्तें बाकी हैं। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। इंडोनेशिया में 6 शिद्दत के ज़लज़ले से हर चीज लरज़ गई। सुलावेसी में शदीद ज़लज़ले से 29 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। ज़लज़ले से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया था। इसराइल की गजा सिटी पर मुकम्मल फौजी कब्जे के लिए कोशिशें तेज। सेहूनी हुकूमत का गजा सिटी से शहरियों को बेदखल करके जनूबी गजा में कैंप जोन्स में मुंतकिल करने का ऐलान। गजा पर फिजाई हमले भी तेज कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली मंसूबे पर तशवीश का इजहार। खबरदार किया कि इस तरह के इक़दामात इंसानी अलमिये को मज़ीद शिद्दत दे सकते हैं। इसराइल बाज न आया। गजा में अल-अहली अस्पताल पर बम बरसा दिए, 7 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे में भूख और खुराक की किल्लत के बायस मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की मजमूई तादाद 251 तक जा पहुंची। इसराइली बर्बरियत फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त ना कर सकी। गजा में शहीद की गई मस्जिद के मलबे पर फ़लस्तीनियों की जानिब से नमाज की अदायगी। इसराइली अफवाज का सना के जनूब में वाक़े हसीस पावर स्टेशन पर हमला। इलाके में बिजली की फराहमी मुतासर होने की इतलात। यमनी हुकाम का वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा यह इक़दाम खत्े में कशीदगी को मज़ीद हवा दे सकता है। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। अमेरिका भर से हजारों सिख वाशिंगटन पहुंच गए। कांग्रेस की इमारत के सामने खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग का आगाज होगा। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना का ला लीगा में फातिहाना आगाज। हिस्पानवी लीग में अपने पहले मैच में मायूका का 3-0 से हरा दिया। राफियाना, फेरन टोरेस और लामीन यमाल ने 1-1 गोल स्कोर किया। गिलगित बाल्टिस्तान के जिला शिकर से ताल्लुक रखने वाली बाहिम्मत खातून को पैमा अमना शिकरी ने 7,027 मीटर बुलंद स्पुतनिक चोटी कामयाबी से सर कर ली। पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा हानिया आमिर दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एमा वॉटसन को भी पीछे छोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में हानिया 6वें नंबर पर मौजूद हैं। एमा वॉटसन खूबसूरत तरीन अदाकारों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर है।
اور مسلسل 3 دہائیوں تک پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی اداکارہ شبنم کی سالگرہ۔ ماضی کی معروف اداکارہ جھرنا باسق المعروف شبنم کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ ان کی یادگار فلموں میں آئینہ، بندش شمع، پروانہ، درشن اور اندلیب شامل ہیں۔